Hello friends, welcome to my channel Biotech Guru, and today we are going to study about orbital overlapping. But before starting this video, let's solve question which I had given in previous video. Okay, so here are some questions. Find the hybridization of following. Means we have to find hybridization of following molecules. So let's start with this one. Here is central atom is iodine, and this iodine is attached with 7 fluorine. Iodine is belonging from 17 groups, so the valence electron will be 7. ये 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा. और ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग्स के लिए किसके साथ? फ्लोरीन के साथ. सो इट विल हैव 0 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट. So let's put this value in formula. What will be the formula? Number of atom attached with the central atom plus lone pair. So number of atom attached with the central atom is 7 and here is no left any electron. So lone pair will be 0. So the total result is 7, and for 7 what will be the hybridization? It is sp3d3. 7 ऑर्बिटल 7 आंसर आया था हमारा. तो 7 जो रिजल्ट था उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? एक S 3P और 3D. काउंट इट, टोटल 7 है ना ये, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. Xenon belong from 18th group, so valence electron will be 8 and it is attached with 1 oxygen and 4 fluorine. अब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड, तो 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड. मीन्स टोटल बॉन्ड यहाँ कितने बन रहे हैं? 6 बॉन्ड बन रहे हैं. सो Xenon have 8 electron. It is using 6 electron for bonding with these molecules. So total left electron is 2. So lone pair will be 1. 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर कितने होंगे? 1 होंगे. सो लेट पुट इन फॉर्मूला. What is formula? Number of atom attached will be 5 plus lone pair. So total answer will be 6. और 6 के लिए हमारा hybridization क्या हो जाएगा? sp3d2. Count it. Total 6 यहाँ ऑर्बिटल हमने यूज कर लिया. ठीक है. Let's solve this one. Here is sulfur. Sulfur will be the central atom and it is attached with 4 fluorine. So sulfur belongs from 16 group. तो valence electron कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. It is making 4 bond with fluorine. So it is using 4 electron. So 2 electron will be left and the lone pair will be 1. So put it in formula. Number of atom attached 4, lone pair 1. The total result is 5, and for 5 we have hybridization sp3d. Okay, let's see this one. N is nitrogen is central atom and it belong from 15 group. Valence electron will be 5, but entire molecule have 1 positive charge. इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक पॉजिटिव चार्ज है. मीन्स नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है. ठीक है, तो टोटल अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4 बच गए. एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉन्ड विथ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन. सो देयर इज 0 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट. So lone pair will be 0. Now put it in formula. Number of atom attached will 4. Lone pair 0. So total result is 4. And for 4 we have hybridization sp3. Now see this benzene. अब हर एक इसमें जितने भी डॉट दिख रहे हैं वो सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं. और हर एक कार्बन को अगर हम यहाँ मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, इसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, दूसरी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है. एंड वी हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सेंट्रल एटम. ओके, सो नाउ सी carbon belong from 14th group, so valence electron will be 4, and this 4 electron are used for making bond with these atoms, so it will have 0 electron left. So lone pair will be 0. Now put it in formula. Number of atom attached is 3. 1, 2, 3. Number of atom 3 and lone pair will be 0. So total result is 3, and for 3 we have hybridization sp2. So जितने भी यहाँ पे कार्बन है, आप देखो ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लो, ये कार्बन, सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है. इसका मतलब हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है विल बी sp2. आई होप यू गाइज ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Okay, so before study about orbital overlapping, we must know about orbitals and their shapes. So total we have 4 orbitals. Generally हमें 4 orbitals के बारे में study करने होते हैं. That are s orbital, p orbital, d orbital and f orbital.
और उसके कुछ यहाँ शेप्स मैंने बनाए हैं। सो यू कैन सी एस ऑर्बिटल के शेप जो होते हैं वो जनरली सर्कुलर शेप होते हैं, इसके कोई भी सब ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। मीन्स एस ऑर्बिटल के पास ओनली वन ऑर्बिटल होता है विच लुक लाइक दिस सर्कुलर शेप। फिर पी ऑर्बिटल के पास टोटल 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 सब ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? पी एक्स होते हैं, पी वाई होते हैं, पी जेड होते हैं। और उनके शेप किस तरह के होते हैं? इट इज डम्बल शेप। ओके, इट इज डम्बल शेप। नाउ लेट्स सी द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के पास टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो 5 सब ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं? तो दैट इज डी एक्स वाई, मतलब ऐसा डी ऑर्बिटल जिसमें एक एक्स का डंबल हो और एक वाई का डंबल हो। एंड सेकेंड वन इज डी जेड एक्स, मीन्स ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा डी का ऑर्बिटल जिसमें एक एक्स का हो डंबल और दूसरा जेड का डंबल हो। ठीक है, नाउ सी द थर्ड वन इज डी वाई जेड ऑर्बिटल, मीन्स वन ऑर्बिटल इज वाई का होगा और अदर ऑर्बिटल इज z का होगा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई एक्स स्क्वायर एंड लास्ट वन इज डी एक्स स्क्वायर, मीन्स दोनों ऑर्बिटल्स बिल्कुल x के ही होंगे। नाउ सी द एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको यहाँ पे कॉपी पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इफ यू वांट टू सी दिस यू कैन गूगल इट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कंडीशन फॉर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। हमें कंडीशंस क्या चाहिए किसी भी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराने के लिए, बिकॉज हर ऑर्बिटल किसी के साथ नहीं ओवरलैपिंग कर सकता है। और सबसे पहली चीज तो ये कि ओवरलैपिंग का मतलब आप क्या समझते हो? तो ओवरलैपिंग जो होता है वो क्या होता है? कोई भी 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स कराना होता है, उन दोनों ऑर्बिटल को साथ में जोड़ना होता है। और ये चीज जो होगा वो किसी भी ऑर्बिटल्स में नहीं पॉसिबल है, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए। और वो कंडीशंस क्या होने चाहिए? लेट्स सी, द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल ओनली टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, मीन्स ओवरलैपिंग वही ऑर्बिटल्स करेंगे जो कि वैलेंस सेल होंगे, मतलब आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं जो कि जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी जो कर रहे होंगे। लाइक हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के, बहुत सारे एटम्स के हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए थे। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कुछ s ऑर्बिटल हैं, कुछ p ऑर्बिटल हैं या फिर कुछ d ऑर्बिटल हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और वो क्या थे? अनपेयर्ड थे। क्योंकि जो पेयर्ड है वो तो नहीं बनाएंगे, बॉन्डिंग नहीं करेंगे। जो अनपेयर्ड थे वही जो थे वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और वही यहाँ पे भी ओवरलैपिंग में भी पार्टिसिपेट वही करेंगे जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज आई थिंक क्लियर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। each of the overlapping orbital should contain an unpaired electron. As I am saying this, अभी मैंने बताया जैसे कि, और वो जितने भी वैलेंस सेल्स होंगे वो क्या होंगे? उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना मस्ट है। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन बॉन्ड बनाएगा? अगर बॉन्ड के लिए हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉन देना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, तो बॉन्डिंग होगी ही नहीं। सो दिस पॉइंट आई थिंक क्लियर कि किसी भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो पेयर्ड होंगे वो क्यों बॉन्डिंग करेंगे? उनको तो बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो वी नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे वही ऑर्बिटल सिर्फ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सो फर्स्ट वन इज SS ओवरलैपिंग, मतलब ऐसा ओवरलैपिंग जिसमें एक जो हमारा ऑर्बिटल है वो s का है और दूसरा भी जो है वो s का ही है। तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का s ऑर्बिटल विल ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। लाइक सी H2 मॉलिक्यूल, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो। H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करते हैं। अब उसका अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। 1s1 एंड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस वन। अभी हमने देखा था शेप कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? तो सर्कुलर शेप होगा।
और दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या अलग हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सेम ही होगा। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। और इस तरह के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब यहाँ पे इसका हेड और इसका हेड, दोनों का हेड क्या हो रहा है? यहाँ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज SS ओवरलैपिंग। सेकेंड इज SP overlapping, that is S orbital of one atom overlap with P orbital of other atom. एक एटम का S orbital and other atom का P orbital will be overlapping here. एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो क्या हो जाएगा? CH4, इट इज मीथेन। हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 1s1 ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1 इस तरह का कुछ होगा एंड शेप विल बी सर्कुलर शेप। ओके, s ऑर्बिटल का सर्कुलर शेप होगा। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p2। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस, बट इट इज ग्राउंड स्टेट। ये अभी जो दिख रहा है वो ग्राउंड स्टेट का है, इसे एक्साइटेड स्टेट में लाना होगा, सो इट विल लुक लाइक दिस। अब ये जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सो हाइड्रोजन एटम इज ओवरलैपिंग विथ कार्बन atom here, so it will look like this, sp orbital overlapping between hydrogen and carbon atom. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि sp ओवरलैपिंग जो होते हैं उसमें कुछ ओवरलैपिंग हेड ऑन होते हैं, मतलब दो ऑर्बिटल्स के हेड यहाँ ओवरलैप कर रहे होते हैं, या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि sp ओवरलैपिंग बहुत तरह के हैं ना, 3 तरह के हैं, sp, sp2, sp3। तो जो जनरली जो sp होते हैं वो कितने 2 तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, या तो वो हेड ऑन करेंगे या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। हम आगे थोड़ा सा जब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ेंगे उस टाइम हम उस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो अभी फिलहाल मैं उसको स्किप कर रही हूँ। नाउ लास्ट इज pp ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा? p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, मतलब एक एटम का p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी p ऑर्बिटल जो होगा वो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। लेट्स सी विथ एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन सिंगल वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको क्या करना होगा? या तो वो किसी और अदर एटम्स के साथ कंबाइन हो जाए, या तो खुद के ही एटम के साथ कंबाइन हो जाए और वो एक मॉलिक्यूल बना ले। सो इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। मतलब इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 3p है, और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। यही हमारा क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा, यही हमारा बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें बॉन्डिंग्स की, तो क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होगा, तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डम्बल शेप होगा। तो मतलब एक क्लोरीन का डम्बल शेप दूसरे वाले क्लोरीन के डम्बल शेप से यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो वो कुछ इस तरह का शो होगा। एक ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, और ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी किस तरह का ओवरलैपिंग है? तो ये भी हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 ओवरलैपिंग के टाइप्स थे, दैट इज SS, SP एंड PP। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो टॉपिक, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम और हो तो फिर मैं इसको और अच्छे से डिटेल समझा सकती हूँ। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा ID पे आप DM कर सकते हो। Thanks for watching. Be the Technology Guru.